Guys, you are able to see the screen? Yes. Yeah. So, so we will be following a proper agenda today. First, I will be introducing myself, how we will be doing these sessions and that all. And then after 20-30 minutes, sorry, after 40 minutes, we will be having a Q&A session where you can directly ask in the questions and because we cannot do directly right now. Personally, I love a two-way system where I will be giving a brief about a topic, and you can also suggest, a two-way communication. But as we have this virtual event, right? So we will be doing like in a manner where I will be giving the entire presentation, and then after the presentation, you can have your questions, and you can just uh, ask anything informally, formally, or in any manner you want to do it, right? So, can we start? Thank you so much for joining, and I hope we'll keep on interacting whenever is possible. And Ayush, can we start now, or should we wait more? I think we should start now. Okay. So, in today's session, basically, we will be focusing on the basics, like what it is all about entrepreneurship, what it is all about startups, how we should do a Pratik startup. sir, Yeah. just a minute. Hello. Let me take this opportunity to welcome you, sir, and thank you for designing such a wonderful program for our students. Thank you, sir. Thank And you. I am sure, sir, this program is so well designed. Ayush, I would like you to encourage other students also to join this. It's so well designed that a student who wishes to have some entrepreneurial venture or is very useful for him. It is giving a 360-degree view of treatment to this particular topic. So I congratulate and thank Pratik sir for coming out with such a wonderful program and sharing his knowledge with our students. Thank you, sir. Thank Thank you, you. Pratik sir. It's an honor to me to be part of RTU team, like in helping them to get the basic idea of entrepreneurship. So I would like to begin with my introduction, and then we will do a formal presentation part, right? And we will try to keep this entire presentation as informal as we can. Although we have a basic structure which we will follow, but you don't have to hesitate in asking any of the questions. You can ask anything which you want after the session, after the 40 minutes, this entire presentation, right? So don't. I would request all the participants, you should not hesitate at all in asking any of the question which even it's about the topic, or it's not related to topic itself. Right. So let me introduce myself. I am Pratik Shabani, and I myself is a founder of a startup called Ads for You. It was basically based on ads on wheel concept. So you must have seen informal auto ads over different autos. You have seen there are ads posted which are much more unorganized. So I was trying to organize that during my graduation only. In third year, I started this startup, and I continued this for around a year, or around 1.5 years, and then I started working with the in this startup ecosystem with a company named Startup Oasis. It was a Jaipur-based incubation center, and I conducted many sessions in RTO as well in past. And then after the Startup Oasis, I moved to iStart, which was flagship initiative of Government of Rajasthan, where we were continuously supporting young entrepreneurs, young startups. And so this is a quick brief about me. And after the presentation, I would like to hear to you also, like what's your plan, how you're doing it. So let's don't waste time and quickly start with the formal presentation. Yeah. So, as Manish sir also mentioned that we have designed the entire program on entrepreneurship,
this is not the one session which we are doing. So the overall objective of this program is that at the end of this program you have something called a startup. We can say you have something called, you don't have just the idea. Instead we will be focusing after this session our focus is that कि आपके पास एक प्रॉपर स्टार्टअप का आइडिया बना हुआ होना चाहिए, वेल प्रूफ बना हुआ होना चाहिए, हम लोगों ने सारी चीजें टेस्ट करी हुई होनी चाहिए, सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट इट, राइट. So let's see कि हम let's see in the slide agenda कि हम लोग किस points को कैसे cover करेंगे. So in today's session we will be covering just about entrepreneurship. It will be a more of introductory session, so इतना burden नहीं होगा आप लोगों को. Just about it's all about the startup, कैसे करनी है, entrepreneurship क्या होता है, कैसे companies usually स्टार्ट करती हैं अपनी जर्नी, कैसे आप जैसे स्टूडेंट्स गलती करते हैं while you start your startup, right? So आज के सेशन में more or less we will be talking about these points. Second, जो next session होगा we will be focusing on developing a business idea. हम लोग आपके जो आइडियाज हैं बेसिकली उन आइडियाज को हम लोग लेंगे एंड उसके थ्रू हम लोग एक बिजनेस आइडिया जो कि प्रॉपर बिजनेस आइडिया होगा उसको डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगे. Right. Third topic will be LMC. जो भी आपने अपना बिजनेस आइडिया ढूंढा है, then in this session, इस सेशन से पहले हम लोग आपको ये कहेंगे कि आप लोग एक टीम बनाई जाए. आप लोगों के जितने भी आप लोग देखो क्या यूजुअली इट हैपेंस कि सबके अपने अपने स्किल्स होते हैं. आई मीन किसी के मार्केटिंग स्किल्स होंगे, किसी के टेक स्किल्स अलग होंगे, या किसी का कुछ और पार्ट में अच्छा होगा. सो बिफोर दिस सेशन हम लोग आप लोगों की टीम फॉर्म कराने का हम लोगों का एम रहेगा, ताकि आप थर्ड सेशन से पहले एक अपना LMC प्रेजेंट करें, दैट इज लीड मॉडल कैनवास. इन द फोर्थ सेशन हाउ टू पिच योर स्टार्टअप, यू आर गोइंग टू पिच दैट LMC बेसिकली, और उसको हम लोग रिफाइन करने का पूरा वे बताएंगे. एंड I will be helping you to guide to how to pitch your startup, क्योंकि pitching your startup is a technique. Generally मतलब it's a process. It's not a like कोई भी एक कॉमन आइडिया नहीं बताना है आपको, एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है पिचिंग योर स्टार्टअप का. सो इन दिस सेशन वी विल बी फोकसिंग ओवर दैट. एंड देन लास्ट लीगल कंप्लायंसेस फॉर स्टार्टअप में हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेडमार्क होते हैं, कैसे आपको अपनी कंपनी को प्रोडक्ट करना है, या कैसे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं कि मेरा स्टार्टअप आइडिया कॉपी तो नहीं हो जाएगा. यूजुअली RTU के स्टूडेंट से मैं जब भी बात करता हूँ या आइडियाज का पूछता हूँ तो उनके माइंड में सबसे पहले ये रहता है कि कहीं मेरा आइडिया कॉपी नहीं हो जाए, कहीं कोई और एग्जीक्यूट नहीं कर ले. तो हम लोग इन चीजों के बारे में बात करेंगे लास्ट वाले सेशन में, राइट. तो अब मैं आई वुड लाइक यू टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट मुझे कोई एक दो जना या कोई भी बताए कि why they want to attend this session and why they want to do a startup. कोई भी जना, I mean कोई भी participants. Hello. Hello. Yeah. Hello, myself Saurabh. हाँ बताइए. So I want to do startup to solve a problem basically, because it excites me to do something different from a community which is more focused on how to get a job, not more focused on how to create job. Okay. So this thing also excites me, and also some problem on which I'm working, that's also excites me. So from this point I want to do a startup. Okay. So it's a good answer, I can say. So basically जैसे आपने पॉइंट उठाया कि I want to do a startup because I want to solve a problem and at the same time I want to create employment rather than कि मैं प्रॉपर जॉब कर लूँ, right? So बेसिकली जब भी हम स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, so सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए, why startup, कि हमें स्टार्टअप करना क्यों है, मतलब what's the logic of doing a startup, क्योंकि it will take a lot of pain. It's not an easy task. I mean कि आपने जस्ट एक आइडिया सोचा एंड उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया एंड यू थिंक इट्स
it will be a global company like Ola, Uber. So it's not the case, right? So सबसे पहले जब भी हम स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो हमें सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए कि व्हाई स्टार्टअप, आखिर हमें ये स्टार्टअप करना क्यों है. सो व्हाट्स द लॉजिक ऑफ द डूइंग स्टार्टअप. सो जैसे आपने सौरभ आंसर करा कि I want to create employment. So basically, why we guys are here in the startup ecosystem and why the government is doing lots of activity in the startup ecosystem, because the overall aim is कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग startups की तरफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग startups करने के लिए try करें and कुछ उनमें से सक्सेस स्टोरीज बने ताकि वो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें rather than वो कहीं जॉब करें, बिकॉज जॉब्स आर लिमिटेड, राइट. आपने भी देखा है अपने अराउंड या आप भी कई कंपनीज में ट्राई करते होंगे या बात करते होंगे. सो जॉब्स के एक अलग प्रॉब्लम है इंडिया में. देयर इज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आई कैन से, right? So it's very important to create startups. That's why the state governments, the central government is pushing so much, doing so much activities in the startup ecosystem, just because they want you guys to do a startup, right? So ये बिल्कुल स्टार्ट था कि हमें स्टार्टअप करनी क्यों है, क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़े, सेकंड अगर हम लोगों ने कोई प्रॉब्लम देखी है या हम लोग किसी पर्टिकुलर आइडिया पे काम करना चाहते हैं तो हम लोगों का एक इंटरेस्ट बनता है, देन वी गो फॉर अ स्टार्ट, राइट. सो नाउ अब मैं मतलब आई वुड लाइक टू कीप इट मोर इंटरेक्टिव रेदर देन मैं आपको सीधा एक नॉलेज बताते जाऊँ या सीधा सेशन बताते हूँ. सो please cooperate with me and be very frank in answering the question, and let it be a two-way communication, not a single way. So anyone again, so what do you think, what is startup? कुछ भी आपके दिमाग में क्या आता है जब आप स्टार्टअप के बारे में सोचते हो, या क्या आपके दिमाग में क्लिक करता है when you think of a startup? Anyone from the audience? Hello. हाँ बताइए. Mostly I also repeat this question in my mind many times and search somewhere. So I think startup and business startup is a sub part of a business. No, it's not. Maybe. It's not. According to Your me, good as name, I your think. good name, please. Your good name first. I'm Saurav. So why Saurav is answering all the question? I want any other person to answer this question. बाकी सब भी है ना हमारे साथ सुन रहे सेशन. हाँ कोई और बताइए. My name is Ishan. हाँ बताइए. Myself Ishan, and I think that basically a startup is a company which is solving a problem. Okay. Whatever your correct. problem is. Partially, it's partially correct. Anyone else? Hello. Anyone else who want to answer? Just जो भी आपके दिमाग में आता है बता सकते हैं. It's not necessary कि आप पूरा definition wise बताएं. I think startup is a thing that can be scalable. अच्छा ठीक है. Again it's a good answer I can say. ठीक है. So अब मैं आपकी तीनों जो आपने दोनों ने एक चीज कही मैं उसको फ्रेम करके and we will go through this definition and we will also talk about some examples in this presentation ताकि आप समझ पाए जैसे कि बिजनेस और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है या स्टार्टअप कैसे स्केल होते हैं या क्या चीजें होती हैं. मैं ये चाहूंगा कि इस पूरी स्लाइड में अपन ये चीजें कवर करें, राइट. तो जैसे सबने आपने सबसे पहले बोला कि स्टार्टअप इज समथिंग विच इज स्केलेबल, राइट. ये भी पॉइंट इस स्लाइड में कवर होगा. एंड सेकंड ने कहा कि स्टार्टअप इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट, जो कि करेक्ट नहीं है. So let's see by definition what is the definition of a startup. So a startup refers to the establishment of a new business company working to solve big and real problem by developing and marketing highly innovative products and service. So basically startup एक नया organization है जो कि एक big and real problem को solve करने के लिए एक big और real problem को solve करता है by some highly
innovative products we can say, or by the services, right? So this is a partial definition. अभी अपन इसके नीचे भी आएंगे, and then we will be taking the example. Startups are generally technology based with high scalability and potential for significant growth. Startup as an organization formed to search for a repeatable and scalable business model, right? So सबसे पहले अपन अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि क्या है. So startup यूजुअली जब भी एक स्टार्टअप बनता है तो उसका एम रहता है कि हम कोई एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करें. जैसे आप में भी अभी सौरभ ने बताया कि स्टार्टअप करने के लिए पैशन ये था कि हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करें, राइट? बट ये हमें जरूर समझना है कि वो प्रॉब्लम सच में रियल प्रॉब्लम होनी चाहिए और बिग प्रॉब्लम होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने कोई बहुत छोटी सी प्रॉब्लम बना दी और उसके अक्रॉस आप स्टार्टअप स्टार्ट करना लग गए तो वो कुछ होगा नहीं. आई मीन उसका कुछ आउटपुट अच्छा नहीं निकलेगा, राइट? अब अपन लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल ऑफ ओला, राइट? अब ओला है, राइट? what a big problem they are solving. They are providing the most ease form of cab service which can be available on a one tap, right? तो हम इस डेफिनेशन में ओला को फिट करना का प्लान करते हैं. आई मीन ओला को फिट करते हैं. सो ओला एक नई कंपनी जिन्होंने एक बिग एंड रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी. प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हमें इंटरसिटी कहीं ट्रैवल करना है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम था, राइट? जैसे आप लोग में से काफी लोग रेलवे स्टेशन जाते होंगे while going somewhere outside. तो पहले क्या तरीका होता था, वी हैव टू वेट फॉर ऑटोज एंड देन वी हैव टू डिस्कस, बार्गेन करना पड़ता था कि इतना लोगे एंड व्हाट्स द केस टुडे. नाउ वी जस्ट हैव टू वन टैप टू द ओला एंड द टैक्सी कम्स एट आवर होम एंड देन वी हैव टू गो. तो उन लोगों ने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एक इंटरसिटी अच्छी अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करी जाए तो इट कैन बी टर्न इनटू वेरी गुड सोल्यूशन और हमारा एक स्टार्टअप हो जाएगा, राइट? सो इस पॉइंट से मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाहता हूँ कि स्टार्टअप ऑलवेज ट्राइज टू सॉल्व अ बिग एंड रियल प्रॉब्लम. तो जब भी आप किसी स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोचें या किसी वेंचर को लॉन्च करने के लिए सोचें तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि क्या वो वेंचर, क्या वो स्टार्टअप एक बिग और रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे आसपास की कोई प्रॉब्लम है और मैंने उसको, जैसे मान लो आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे ऑन टाइम, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कॉलेज स्टूडेंट का. तो आपने सोचा है कि तो बिग एंड रियल प्रॉब्लम है और मैं कुछ बना लेता हूँ उसके अक्रॉस और वो स्टार्टअप हो जाएगी. नहीं होगा. जब तक वो एक प्रॉब्लम है ये बहुत लोगों की नहीं होगी तब तक वो एक सही से नहीं हो पाएगी, एक स्टार्टअप बड़ी नहीं हो पाएगी, राइट? सेकंड पॉइंट पे आते हैं. स्टार्टअप्स आर जनरली टेक्नोलॉजी बेस्ड विद हाई स्केलेबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ. जैसे इसमें भी अपन ओला के एग्जांपल को फिट करते हैं. सो इसमें ये मेंशन है कि स्टार्टअप्स आर जनरली टेक्नोलॉजी बेस्ड. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही स्टार्टअप टेक्नोलॉजी वाला हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जैसे अपन ओला का एग्जांपल लें तो दे हैव प्रोवाइडेड एज द एप्लीकेशन, राइट? ऐसे अगर अपन अदर स्टार्टअप्स के बारे में सोचे, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो सबकी सब जनरली टेक्नोलॉजी बेस्ड है जिसके थ्रू वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट? सो स्टार्टअप्स आर जनरली टेक्नोलॉजी बेस्ड विद हाई स्केलेबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ. अब आती है बात स्केलेबिलिटी की. सो स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि how fast they can expand into different cities, how fast they can launch into different cities. आज जैसे अगर ओला यहाँ पे है, कोटा में, अगर उसको उदयपुर लॉन्च होना है तो उनको पूरा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है या उनको पूरा एक बैकअप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. उनके पास एप्लीकेशन है, दे हैव देयर टीम रेडी, जस्ट वहां पे जाके मार्केट करना है, राइट? तो ये स्केलेबिलिटी फैक्टर स्टार्टअप्स में होता है एंड ये इसलिए होता है क्योंकि वो जनरली टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, राइट? अब और इसको समझेंगे. जैसे आप में से किसी ने एक पॉइंट उठाया था कि स्टार्टअप्स आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस. सो इट्स नॉट लाइक दैट. बिजनेस और स्टार्टअप्स में का अगर आपको डिफरेंस समझना है तो आप एक एग्जांपल ले लो.
लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट ग्रोफर्स, राइट? ग्रोफर्स या बिग बास्केट. अब बिग बास्केट पे हो क्या रहा है, हम लोगों को डेली ग्रोसरीज मिल रही हैं. हमें अगर मोबाइल के थ्रू हमें ऑर्डर करना है तो वी कैन जस्ट डायरेक्टली ऑर्डर विदाउट गोइंग टू द स्टोर, राइट? अब आप दूसरे साइड पे अपन बात करते हैं ऑफलाइन स्टोर वाला, जो अपने नियर बाय शॉप है. ग्रोसरीज तो वहां पे भी मिल रही हैं, सेम चीजें वहीं पे ही हैं, रेट्स डिफरेंस है ऑफ कोर्स, बाकी सेम वही है. अब आप सोचो, जो ये ग्रोफर्स वाला था वो कितना, वो क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी थी, वो स्केल हो सकता है, मतलब वो मल्टीपल सिटीज में एकदम से एक्सपेंड हो सकता है. बट क्या जो शॉप वाला था, वो अपने रेडियस, जो कि मान ले अगर अपने रेडियस मतलब मान लो कि जैसे हम लोगों की देखिए, अगर आपको आपकी एक ग्रोसरी शॉप है, आप तलवंडी में रहते हैं, तो आप गुमानपुरा तो नहीं आएंगे बाय कर रहे हैं, या आप और गुमानपुरा को छोड़ो, अगर आप बात कर रहे हैं बूंदी की, तो आप बूंदी तो नहीं जाएंगे बाय करने के लिए. तो ये एक डिफरेंस होता है बेसिकली स्टार्टअप्स और बिजनेस के बीच में. बिजनेसेस जो होते हैं वो इतने इजीली स्केलेबल नहीं होते, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी नहीं इनेबल्ड होती, कुछ ना कुछ इनेबल्ड नहीं होता. बट स्टार्टअप्स जो होते हैं वो की टेक्नोलॉजी इनेबल्ड की वजह से बहुत जल्दी फास्ट रैपिड स्केल करते हैं, और डिफरेंट सिटीज में उनको स्केल करने में टाइम नहीं लगता, राइट? सो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन बोथ स्टार्टअप एंड बिजनेस, राइट? एंड लास्ट पॉइंट, स्टार्टअप एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू सर्च फॉर अ रिपीटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी कोई स्टार्टअप लॉन्च करता है तो ऐसा नहीं कि फ्रॉम डे वन दे आर फिक्स्ड ऑन देयर मॉडल, दे आर लाइक कि हमें इसी मॉडल पे चलना है या हमारा बिजनेस मॉडल यही होगा, राइट? इसको समझने के लिए आप पेटीएम का एग्जांपल लो. सो पेटीएम वाज स्टार्टेड एज अ वॉलेट, जस्ट एज अ वॉलेट, जहाँ पे इट वाज टोटली, मतलब अभी जो पेटीएम है वो तो टोटली डिफरेंट है. आई मीन दे हैव अ टोटली टर्न इनटू अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ मल्टीपल चीजें बेच रहे हैं, मार्केट प्लेस बन चुके हैं. बट जब वो इनिशियली लॉन्च हुए तो वो ऐसे नहीं थे, right? तो स्टार्टअप्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उनका बिजनेस मॉडल चेंज हो सकता है, उनका वो बेसिकली टोटली एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज पे होता है, एंड देन दे फाउंड कि यार ये अच्छा चल रहा है तो लेट्स एग्जीक्यूट इन दिस वे, राइट? So after this, I want you to unmute yourself for a second and let me know if you have any doubts, and let me talk about and let's talk about your opinion about the startups. Please unmute yourself for a minute. Hello, guys, please unmute yourself for a minute. Yeah. Anyone have any questions till now? Then we will move ahead, ताकि आप ये एक two-way Yeah, I communication. have one question. हाँ, बताइए. Your name please and then a question. Yeah, my name is Ishan Jain. Okay, okay. I had a question in mind that, for example, if a family has an ancestral business of making sweets, for example, Got it. yeah. So can हाँ, we say that their ancestor had a startup of making sweets? ठीक है. So why we cannot termed it as a startup rather than we will say it as a business? क्योंकि मैंने आपको अभी ये एक पॉइंट कवर करा शायद. यूजुअली क्या, जैसे अपन के ट्रेडिशनल जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, जितने भी बिजनेस शॉप्स हैं, राइट, वी डोंट से दैट दे आर अ स्टार्टअप, राइट? जैसे आपकी आपने जो एग्जांपल लिया, आपके एंसेस्ट्रल बिजनेस है, मिठाई की शॉप है, तो वो स्टार्टअप नहीं कहा जा सकता. जब स्टार्ट करा था तब भी स्टार्टअप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका एक बड़ा फिक्स्ड मार्केट उन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि यार हमें तो यहाँ पे शॉप के आसपास जितने लोग आएंगे, या कोटा सिटी के ज्यादा से ज्यादा, अगर आपकी बहुत पॉपुलर भी हो गई, लेट्स सपोज जोधपुर है या कोई है, तो वहां कितने लोगों को वो लोग डील कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोटा के आ जाएंगे, बूंदी के आ जाएंगे, दैट्स इट ना. अब ऐसा तो नहीं है ना कि जोधपुर की मिठाई पूरे इंडिया में बिक रही है, ऐसा है क्या? आप बताइए.
No, for example, if we consider a shop like Jai Jinendra, they have हाँ, shops in all the cities almost in Rajasthan. राइट राइट So can that be considered as a startup? राइट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसी से अपन डिफरेंस पता करेंगे। सी, इसमें दो दो बेसिकली आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसको उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा इस पूरे टर्म्स में, ये वाली डेफिनेशन में, कि स्टार्टअप्स आर जनरल टेक्नोलॉजी बेस्ड विद हाई स्केलेबिलिटी। राइट, आपने कहा कि एक स्टोर है, उसके मल्टीपल स्टोर्स खुल रहे हैं, तो वो स्टार्टअप के टर्म में आ सकता है या नहीं आ सकता? Yeah. ठीक है। तो अब जैसे जय जितेंद्र जब स्टार्ट हुआ, तब उनका ऐसा कोई प्लान नहीं था, एक्सपेंशन प्लान नहीं था कि वी विल बी ओपनिंग अ डिफरेंट स्टोर्स, वी विल बी डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग व्हिच दे आर डूइंग इट राइट नाउ, राइट। बट ऑफ कोर्स अब वो एक जो अब उनका प्लान है, नाउ दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे कैन बी एंटर्ड इनटू अ स्टार्टअप कैटेगरी, राइट। इनिशियली अगर डिफरेंस ये है, इनिशियली अगर आपका माइंडसेट ये है कि आप सिर्फ एक स्टोर चला रहे हो या 2 स्टोर चला रहे हो, तो आपको स्टार्टअप वाली कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। बट इफ यू आर थिंकिंग कि हम लोग एक फ्रेंचाइजी चेन बनाएंगे, या जैसे हम अभी आपने देखे होंगे बहुत सारे, जैसे चायोज है, राइट। अब चायोज में तो चायोज बहुत बड़ा स्टार्टअप है, राइट, जबकि उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, दे आर जस्ट अ टी शॉप विथ सम इनोवेशन, राइट, विथ सम यूएसपी। तो इसी बेस पे अगर आपको कोई स्टोर भी है, राइट, बट उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ वेरी कॉमन थिंग, इट शुड नॉट बी अ थिंग जो कि इजीली हर जगह मिल रही हो। जब तक आपकी कोई यूएसपी नहीं होगी, तब तक वो एक स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। आपका कुछ एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे चायोज में है, दे सर्व अराउंड 100 टाइप्स ऑफ टी, जो कि उनको डिफरेंट क्रिएट करता है फ्रॉम द अदर टी सेलर्स, राइट। इसी तरीके से अगर आपका माइंडसेट अगर वो है कि आपका एक मिठाई का शॉप जो है, वो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिठाई बनाएगा एंड वो सेल करेगा अक्रॉस द कंट्री बाय हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर्स, सो यस, इट कैन बी एंटर्ड इनटू अ स्टार्टअप कैटेगरी, राइट। आई होप। Hello. I have a doubt also. What impact or what it create another thing that I am doing a business or I am doing a startup. Let's suppose first I am entering doing something as a business, okay, and then I am doing it as a startup. Like suppose I am innovating and now I am expanding myself. So what difference it create around me, or I think startup and business are same, only definition is change. Only if I'm doing that I'm called startup, and if I'm not doing those things, then then I'm a business. But Right. if I'm working as a startup, then only I called it a startup. And what difference it create around me? Right. Does I people got think in myself in another way that this person doing a startup rather than a business? Got your question. Let me answer this. So basically, it's a different. What you are saying? What's the difference? So basically, it's a difference of approach, right? When you set a plan, right? मान लीजिए आपको कुछ आज स्टार्ट करना है ना? अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। Let's suppose let's take an example. मुझे एक वेजिटेबल स्टोर खोलना है, राइट। अब मेरे पास 2 अप्रोच है, या तो मैं इसको एज अ बिजनेस की तरह देखूं, या मैं इसको एज अ स्टार्टअप की तरह देखूं। अब डिफरेंस क्या होगा, जब मैं उसको बिजनेस की एंगल से ही देख रहा हूं, या मैं सिर्फ बिजनेस ही कंसिडर करके चल रहा हूं, तो मेरा काम कुछ नहीं है। मेरा काम ये है कि मैंने अपना शॉप खोला, वहां वेजिटेबल्स रखी हैं, आई प्रोक्योर देम एंड आई सेल देम। जो मैंने प्रॉफिट मार्जिन कमाया और मैं वो कमाते गया, और ज्यादा से ज्यादा मेरे एक स्टोर से 2 हो गए, 3 हो गए मैक्सिमम, ठीक है। ये मेरा था बिजनेस सेंस, ठीक है। अब आते हैं, अगर मैं इसको फ्रॉम डे 1 मैं इसको एज अ स्टार्टअप लेके चल रहा हूँ, लेट्स नेम इट एज kotasabjiwala.com, राइट। अब मेरी अप्रोच क्या है कि आई डोंट वांट कि मैं जहां पे मेरा स्टोर है, या मेरा मान लो मेरा फिजिकल स्टोर है ही नहीं, राइट। मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट करा, ठीक है। वो एप्लीकेशन लोगों को डाउनलोड कराने पे मैंने अपना फोकस करा। मैंने फिजिकल स्टोर पे फोकस नहीं करा। मैंने स्टार्टअप की एंगल से सोचा, और मेरा ये माइंडसेट था कि मेरे को एक पर्टिकुलर एरिया तक रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा। मेरे को कोटा में लॉन्च होना है, मेरे को उदयपुर में जाना है, मेरे को बूंदी में भी सेल करना है, मेरे को भीलवाड़ा में भी करना है, राइट। सो इट्स टोटली अपॉन द अप्रोच। सेकंड केस में जब मैंने काम मैं वही कर रहा था, मैं पहले वाले केस में भी मैं उनको एक अच्छे मीडियम ऑफ
एक सब्जी प्रोवाइड कर रहा था, एक वेजिटेबल स्टोर के थ्रू उनके घरों में वेजिटेबल्स जा रही थी, राइट। बट दैट वाज अ ट्रेडिशनल वन, जो कि होता है, जो कि होता आ रहा है अभी तक। बट सेकंड केस में व्हेन आई थॉट इट एज अ स्टार्टअप, तब मैंने क्या करा, मैंने स्टोर नहीं डाला, मैंने उस वेजिटेबल्स के सेलिंग बिजनेस में यूएसपी क्रिएट करा कि भैया मेरी जो वेजिटेबल होंगी वो फ्रेशली पैक्ड होंगी, वो उसमें कोई चीटिंग लेवल नहीं होगा, या मैंने एक एसओपीज बना दिया कि इतनी फ्रेश क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स ही जाएंगी, या जो भी उसमें गंदा होगा वो हटा दिया जाएगा। एंड आई स्टार्टेड डिलीवरिंग दैट, मैंने एक डिलीवरी बॉय रखा जो कि घर घर जाके डिलीवरी कर रहा है, राइट। अब सेकंड केस में जहां मैंने एप्लीकेशन और वेबसाइट से करा था, तो ये मेरे लिए इजी हो गया कि मेरे को अगर उदयपुर में लॉन्च करना था तब भी मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, जस्ट आई हैव टू फिक्स 2 डिलीवरी बॉयज, और वहां पे एक अपना एप्लीकेशन लॉन्च करना था, और वहां पे लोग ऑर्डर करना स्टार्ट कर देते, राइट। So I guess I have answered your question. So it's totally difference of approach which you are making. Yes, yes. Yeah. So जब आप बिजनेस कर रहे हैं तब आपकी अप्रोच यही रहती है कि आप एक सिटी को डिलीवर करेंगे या 2 सिटी को डिलीवर करेंगे। जब आप ये स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप विद सम इनोवेशन ओनली, जैसे एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन कैन बी अ पार्ट ऑफ इनोवेशन, एप्लीकेशन है तो वो इनोवेशन है, राइट। तो उसके थ्रू आई एम डिलीवरिंग टू द एंटायर, I can say I can deliver to many cities, not restricted to my one city. अब उसमें होगा क्या, उसमें मेरे रेवेन्यू बढ़ेंगे, मैं बहुत जल्दी स्केल होऊंगा, तो ये सारी चीजें आपको बाद में जो सेशन होगा वो समझ आएगा कि जब स्केल होगा तो कैसे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे और हमें फंड कर देंगे, राइट। अगर आप बोलोगे, लेट सपोज आपने लेटर स्टेज पे ये दोनों केसेस को ले गए एंड मैंने इन्वेस्टर को बोला कि यार मेरा तो एक सब्जी वाला स्टोर है, ठीक है, तो क्या वो इन्वेस्ट करेगा? और इंस्टीट्यूट मैंने उसको ये बोला कि यार मेरा पास तो एक ऑनलाइन पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू मैं वेजिटेबल्स डिलीवर कर सकता हूँ विद इन 34 सिटीज 38 सिटीज, तब वो मोर इंटरेस्टेड होगा मुझे फंड करने के लिए, मेरी स्टार्टअप को फंड करने के लिए। एनी अदर क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? Shall we move ahead? Yes. Okay. So again, it's on you. I want to know from you guys कि how you think of idea, या आप में से किसने स्टार्टअप करा है? किसी ने कुछ करा है? Can anyone tell? Can anyone share their opinion about a startup, and then we will carry it forward. Hello. Okay. Yeah, one by one. You can take time. We have time. Yeah. One by one. Yeah. Good afternoon, sir. This is Naman. Naman. Yeah. Hi, Naman. हाय सर। सर एक्चुअली अभी जब लॉकडाउन लगा था उसके 2 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली मई में मैंने एक स्टार्टअप सोचा था और स्टार्ट भी कर दिया था कोटा में। मतलब वो स्टार्टअप था मास्क से रिलेटेड। मतलब हमने ऐसे होलसेल में जो डीलर्स होते हैं उन लोगों से मास्क ले लिए थे, और क्योंकि जब जो हम लोगों ने सोचा था कि हम एक ऐप निकालेंगे, और ऐप नहीं तो एक्चुअली हमने स्टार्टिंग की थी व्हाट्सएप नंबर से कि आप हमें कॉल कर दें, मैसेज कर दें और मास्क आ जाएंगे। तो उसमें ऐसा था सर, हमने स्टार्ट भी किया, और मतलब जो हमारे लोकलाइट्स हैं जहाँ मैं रहता हूँ तो आसपास लोगों ने खरीदे भी सही। बट द प्रॉब्लम वाज कि जिस समय हम लोगों ने लॉन्च किया मई जून में, तब तक सबके पास मास्क हो गए थे। तो स्टार्टिंग में तो हमारी सेल अच्छी हो गई। मतलब स्टार्टिंग में तो एक होता है ना कि नया नया कुछ निकला है और आस पड़ोस के सब ले लेते हैं, पूरे मोहल्ले में अच्छी खासी सेल हुई थी। बट फिर एकदम से सेल बिल्कुल बंद हो गई। मतलब किसी ने लेना ही, क्योंकि वो टाइम ऐसा हो गया था जब सबके पास मास्क हो गए थे। Got it. और हमने डिलीवरी बॉयज भी रखे थे। मतलब प्रॉफिट था, बट वो चीज था जो हमने सोचा था कि जितना हमने ले लिया था हम उतना सेल नहीं कर पाए। Got it. So basically जो आपने करा वो एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी कि चलो कोविड का टाइम आ रहा है एंड मास्क विल बी सोल्ड, राइट। सो जस्ट प्रोक्योर देम एंड डू, आई गेस जो आपने करा, आई कैन नॉट टर्म इट एज अ स्टार्टअप, इट कैन बी टर्म्ड एज अ बिजनेस, कि आपने फ्रॉम ए पॉइंट उठाया एंड फ्रॉम बी पॉइंट हमने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी, बट जस्ट वी आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन डिलीवरी, राइट। यही कर रहे थे ना आप, नमन?
यस सर, बट एक चीज और थी कि जैसे जो मास्क बाहर मिलते हैं, जैसे कोई मास्क 10 रुपीज का मिल रहा था, हाँ। तो हम लोगों ने उसको 50% में ही दे दिया था बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को जो खरीदते हैं हम लोग वो बहुत ही सस्ता होता है और ये जो शॉप से बहुत महंगे बेचते हैं, तो हम लोगों ने उसे इकोनॉमिकल रख दिया था। Right. Any other person who want to share your experience of doing a startup, या आपको कैसे startup करना चाहिए कुछ बता सकते हैं? Then we will take it as. I think we should do a deep research on market, because as I started my journey, my work, I seen that as many things I start work on, and I noticed that there is a company which is doing same thing. Okay. But as I'm going deeper and deeper and deeper, I think I see many opportunities. That yeah, we have many problems, but from looking from above, it is very hard to find a startup or a problem. ठीक है, ठीक है. Because there are lots of people in community which are seeking opportunities to do things, and so you have to work, or you have to research deeper to find a good problem that can be solved for startup or for your entrepreneurial journey. Got it. So let's understand your point, and then what I want to tell you guys. So generally समझते हैं कि usually students like you या me, myself also, when I started a startup, तो हम लोग को की गलती सबसे पहले क्या होती है, राइट? हम लोगों का प्रोसेस क्या होता है स्टार्टअप का? हम लोग एक टी कैफे में बैठते हैं, या मान लो आपके कॉलेज के आसपास कैंटीन में बैठते हैं, वहाँ हमारा अप्रोच ये होती है कि चलो यार, स्टार्टअप इज वेरी फैसिनेटिंग थिंग, एंड बताओ क्या आइडिया है, और क्या आइडिया पे जो हमारा ग्रुप होता है, बेसिकली हमारे जो पीयर ग्रुप होता है, उसमें हम लोग बोलते हैं कि यार बताओ क्या आइडिया पे अपन काम कर सकते हैं, या अपन फिर सीधे ही जंप करते हैं जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं, जैसे बायजूस हो गया, ऑनलाइन लर्निंग हो गई। तो हम लोगों का यूजुअली जो स्टूडेंट्स की अप्रोच होती है वो यही होती है कि दे डायरेक्टली कम अप ऑन द आइडिया कि इट्स फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स है, बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों नहीं हम भी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए, क्यों नहीं हम भी डायरेक्टली हम लोग उसको मार्केट करेंगे एंड वी विल बी सेलिंग द प्रोडक्ट। सो हम लोगों की, सो विद दिस एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी डायरेक्टली लुक फॉर द आइडियाज, राइट? we don't think about the problem, instead we go and we directly look for ideas कि ये आइडिया अच्छा लग रहा है, let's pick it up, let's do some modulation and execute it, right? but instead क्या होना चाहिए, जैसे आपने अभी बोला, it should be a very deep dive on the problem you are wanting to solve. जनरली प्रोसेस ये होना चाहिए स्टार्टअप का, और यही प्रोसेस होता है एक सक्सेसफुल स्टार्टअप का, कि वो लोग सबसे पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन दे बिल्ड आई कैन से अ पायलट प्रोजेक्ट ओवर दैट, कि हमारे जो हमने ऐप बनाया है, या हम जो सर्विस बनाई है, या हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी, एंड देन यू शुड डू अ लॉन्च। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमें एक आइडिया आया रैंडमली एंड वी गो फॉर अ लॉन्च, ये नहीं होता। अब इसको समझने के लिए अगेन वी विल बी टेकिंग अ एग्जांपल। सो आप में से कोई बताएगा हाउ ओला वाज स्टार्टेड? किसी को आइडिया है कि ओला सबसे पहले स्टार्ट में ओला क्या थी, या मतलब कैसे स्टार्ट करा था? कोई भी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहे? एनीवन? See guys, make it more interactive. जितना आप बताओगे ना तो उतना ही आपको मजा आएगा, उतना ही आपको डाउट्स क्लियर होंगे। जैसे अभी स्टार्टिंग में 2-3 बंदों ने क्वेश्चंस पूछे, इट वाज वेरी गुड। सो बताइए। As a holiday tool shop, as a holiday tool vehicles. Yeah, correct. Your good name, please? Ishan. ईशान, ग्रेट। सो बेसिकली आपने बिल्कुल सही बताया। अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, ओला वाज स्टार्टेड एज अ आउट स्टेशन सिटी सर्विस कैब। उन्होंने डायरेक्टली उनके माइंडसेट में ये था कि हमें
जैसे अगर आप भावेश अग्रवाल का इंटरव्यू देखेंगे, सो ही सेज दैट कि हम लोगों को था कि हमें स्टार्टअप करना ही है, एंड देन दे डायरेक्टली दे चूज द सेक्टर कि हमें टैक्सी स्पेस में कुछ करना है, राइट? बट उन लोगों ने क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करी थी प्रॉब्लम क्या है, सो दे जस्ट स्टार्टेड एज आउटस्टेशन सर्विस, टैक्सी सर्विस, जहां बस डिफरेंस ये था कि वो लोग एप्लीकेशंस के थ्रू आउटस्टेशन टैक्सी सर्विस बुक कर रहे थे। बट while they executed their idea, ठीक है, तो उनको पता पड़ा कि यार ये तो बिग और रियल प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली कोर प्रॉब्लम तो ये है कि एक इंटरसिटी में अच्छी ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडेड नहीं है, राइट? एंड देन दे रीफ्रेम द आइडिया अगेन एंड देन दे रीलॉन्च इट। आई मीन उन्होंने कंप्लीटली ये फिगर आउट करा कि अगर इसकी जगह हम इंटरसिटी में एप्लीकेशन के थ्रू एक अच्छी कैब सर्विस इकोनॉमिकल रेट पे दे पाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू आउटस्टेशन सर्विस, राइट? सो थ्रू दिस एग्जांपल व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू गाइस इज कि जब भी कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो जिस प्रॉब्लम के अक्रॉस आप सोल्यूशन बना रहे हैं उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है एंड डायरेक्टली आइडिया पे जंप नहीं करना, उस प्रॉब्लम के आसपास आपको रिसर्च करनी है बिफोर लॉन्चिंग अ स्टार्टअप, right? We don't have to directly launch the startup, right? Next, this is a problem opportunity slide. So there is a no great idea without a great problem. जैसे हमने इनिशियली भी बात करा कि सबसे पहले हम लोगों को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, उसके अक्रॉस हमें स्टार्टअप बनाना है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें एंड उस प्रॉब्लम से हम बेसिकली उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा वो हमारा एक स्टार्टअप होगा, राइट? सो दिस स्लाइड सेज देयर इज नो ग्रेट आइडिया विदाउट अ ग्रेट प्रॉब्लम। जब तक एक ग्रेट प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक उसके अक्रॉस एक बड़ा स्टार्टअप नहीं होगा या बड़ा आइडिया नहीं होगा, राइट? So this says कि problem is always equal to the opportunity, right? Now basically एक और point जो बहुत important है while you doing a startup और while you thinking for a startup कि जो हम लोग करना चाह रहे हैं या जो हम आइडिया के लिए मतलब पैशन, हमारा जो आइडिया जो हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, राइट? उसके लिए हमारे पास बेसिक स्किल्स हो, पैशन हो, एम्पैथी हो, राइट? स्किल्स आप सबको बताइए, मतलब आपके पास या आपकी टीम के पास स्किल्स होना चाहिए। जैसे अगर आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, whether let's say एग्जांपल kotasabjiwala.com बना रहे हैं या कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो जरूरी है कि आपकी टीम में एक टेक बंदा हो जिसके पास ये स्किल्स हो ऐप डेवलपमेंट के, और बाकी जो बंदे हो कोई बिजनेस डेवलपमेंट का हो, कोई सेल्स का हो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने दोस्त लोगों को स्टार्टअप्स में रख लेते हैं, भाई तू भी बता दे क्या करना है, और दूसरों से 2-3 और से पूछ लेंगे कि तू भी आजा टीम में, तू भी आजा टीम में। बट इट शुड नॉट बी अ केस। इंस्टीट्यूट क्या होना चाहिए, हम लोगों को जो पूरा ग्रुप होना चाहिए वो सब में एक स्किल्स होनी चाहिए। जैसे बिजनेस डेवलपमेंट का एक बंदा होना चाहिए, एक बंदा आई कैन से टेक का होना चाहिए, एक सेल्स का होना चाहिए, राइट? सेकंड इज पैशन। जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं सॉल्व, उसके लिए आपके पास पैशन होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग में होएगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट्स ऑल लाइक कि आपने वो लैग कर दिया, खत्म, राइट? सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है एंड वी विल बी टॉकिंग इट आफ्टर द प्रेजेंटेशन एज वेल, जब हम आपसे वन ऑन वन डिस्कशन करेंगे कि ये चीजें कैसे इंपॉर्टेंट करती है। दिस इज लाइक फर्स्ट यू थिंक ऑफ आइडिया, राइट? डायरेक्टली जंप मत करो, डायरेक्टली एग्जीक्यूशन पे मत आओ। सबसे पहले एक अपने आइडिया को थिंक करो अच्छे से, उस पे एक एमवीपी बनाओ, दैट इज मिनिमल वायरेबल प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप बनाओ। इस पर्टिकुलर टर्म को हम नेक्स्ट वाला सेशन उसमें समझेंगे कि कैसे एमवीपी बनता है, क्या प्रोटोटाइप होता है, राइट? एंड देन टेस्ट इट, देन वैलिडेट इट, राइट? फिर आपको क्या करना है, उसको टेस्ट करना है। डायरेक्टली आपको फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाना, उसका कुछ पार्ट बनाना है and then you have to validate it and then you have to execute it. ये उसी चीज का पार्ट है। जैसे
जिससे मैंने बताया हाउ टू बिल्ड अ मिनिमम वायरल प्रोडक्ट। तो जैसे कि आपको फाइनल प्रोडक्ट पे डायरेक्ट नहीं आना, जैसे यहाँ पर देखते हैं कि कार का एक प्रोसेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्केटबोर्ड, सबसे पहले हमने एक सिस्टम बनाया जिसमें 2 व्हील्स थे, देन वी ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्केटबोर्ड कि चलो एक हैंडल आ गया, देन वी ट्रांसफॉर्म इट इज अ बाइसाइकिल कि चलो कुछ चलने वाला प्रोडक्ट है, देन वी ट्रांसफॉर्म इट इज अ बाइक कि चलो कुछ ऑटोमेटिक चले, मतलब ऑटोमेटिक मतलब वी डोंट हैव टू यूटिलाइज आवर एनर्जी एंड देन वी टर्न इनटू अ कार। सो ये कार लेट सपोज आपकी स्टार्टअप है, राइट? सो स्टार्टअप तक पहुंचने के लिए देयर शुड बी स्टेप्स, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट बना के बैठ जाओ, राइट? This will be this is basically which will be discussing during our discussion only. तो अभी अपन इस point को नहीं calculate कर रहे हैं. So that's all from my side. Now we will be taking the Q&A session and we will be covering most of the question in the Q&A session. So I would request you to unmute yourself, all the person, please unmute yourself. And yeah. So may I ask? हाँ, अब make it as a very interactive, Nan. Ask your questions. Let me know what you got from the presentation, what you don't feel ki it was easy to easy to grab or easy to understand. So one by one, please ask your questions. सर माय क्वेश्चन है कि जो अभी यूट्यूब चैनल्स शुरू हो रहे हैं या एक हम बोल रहे हैं सोशल मीडिया क्रिएटर्स जो हैं और हाँ. वो जब स्टार्टिंग करते हैं तो वो सारे काम खुद करते हैं, तो एक हम कह सकते हैं सोलोप्रेन्योर की तरह निकल के आ रहे हैं, मतलब वो एडिटिंग भी खुद कर रहे हैं, शूटिंग सब कुछ वो खुद कर रहे हैं। बट जैसे जैसे उनके पास रेवेन्यू अच्छा आता है और सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं तो पूरी टीम खड़ी हो जाती है, हर चीज के लिए एक बंदा होता है। क्या उनका जो काम है, हम उन्हें क्रिएटर तो बोल रहे हैं, तो सर क्या उनका भी एक स्टार्टअप है, भले फिर वो एंटरटेनमेंट के लिए हो या अलग अलग टाइप के चैनल्स हैं, तो क्या वो स्टार्टअप हम उन्हें कह सकते हैं? राइट, तो आप जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दैट्स मोर अबाउट कि हाउ टू कन्वर्ट योर पैशन इनटू अ स्टार्टअप। जैसे बहुत लोगों का ड्राइंग का पैशन होता है, या बहुत लोग, जैसे आपने एग्जांपल लिया यूट्यूब पे स्टार्ट करा, राइट? तो इज इट अ स्टार्टअप और नॉट, और स्टार्टिंग में कैसे करा, राइट? सो नमन, यूजुअली प्रोसेस ये होता है इसमें कि स्टार्टिंग में तो ऑफ कोर्स वी आर द ओनली वन हु हैव द आइडिया, तो हम लोग स्टार्ट करने लग जाते हैं और हम लोग टीम पे ज्यादा फोकस नहीं करते। बट एंड फ्रॉम डे वन वी कैनॉट से इट एज अ स्टार्टअप। हम फ्रॉम डे वन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आज मान लो मेरा सेशन हुआ, आपके पास कोई आइडिया आया, राइट? क्योंकि ये होता है, एक किक मिलता है, एक थोड़ा सा टाइम के लिए मिलता है कि यार चलो कुछ करके देखते हैं, है ना? सो it cannot be called a startup on the initial stage, क्योंकि जब तक आप उसको वैलिडेट नहीं कर देते, जैसे हमने प्रेजेंटेशन में भी देखा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वैलिडेट योर आइडिया, राइट? जब एक आइडिया वैलिडेशन हो जाता है एंड व्हेन यू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, तब उसको अपन स्टार्टअप की कैटेगरी में डाल सकते हैं या स्टार्टअप कह सकते हैं। जैसे यूट्यूब वाले केस में, अगर उसने जस्ट एक दिन वीडियो बनाया, 2 दिन वीडियो बनाया, उसको मजा आ गया एंड तो मान लो मजा नहीं आया, उसने बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं कि उसने स्टार्टअप खोली थी बंद कर दी, वो सिर्फ अपना एक पैशन एक्सप्लोर कर रहा था, या वो अपना जो उसने सोच रखा था वो एग्जीक्यूट कर रहा था। इंस्टीड अगर उसने एक प्रॉपर नीश बना लिया कि यार मैं ऑनलाइन वीडियो से ये कंटेंट दूंगा एंड देन ऐसा होगा, मतलब वो वीडियो कंटेंट से ऐसा हो जाएगा एंड राइट, अगर वो वीडियो कंटेंट से ये ऐसा हो गया कि उसने एक प्रॉपर नीश फाइंड आउट कर लिया कि भैया ये पर्टिकुलर कंटेंट पे ही मैं वीडियोस बनाऊंगा एंड मैं उसके लिए फिर वेबसाइट बना रहा हूँ, मैंने उसके लिए पूरा प्रॉपर चैनल बना लिया। जैसे आप देख रहे होंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। जैसे एक बंदा है राहुल कुमार करके, ही इज बेस्ड आउट ऑफ भरतपुर। उसने पहले यूट्यूब चैनल के थ्रू एक नॉर्मल सा ई कॉमर्स पे अपनी लिस्टिंग कैसे करते हैं उसका आइडिया दिया, राइट? वो उसका वीडियो बहुत लोगों ने लाइक करा, सो ही गॉट द आइडिया कि यार इस पर्टिकुलर कैटेगरी में लोगों का इंटरेस्ट है। देन ही फॉर्म्ड अ वेबसाइट अराउंड इट, देन ही फॉर्म्ड अ प्रॉपर बिजनेस अराउंड इट, मतलब देन ही फॉर्म्ड अ प्रॉपर स्टार्टअप अराउंड इट, आई कैन से।
जो कि अब वो मल्टीपल सिटीज में जाके प्रॉपर कंसल्टेंसी दे रहा है इस चीज की कि हाउ टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस, राइट? सो आई गेस नमन, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. Yes, Any sir. other? Yes, sir, I have one. As you Huh. are a part of iStart now, so No, I was part of iStart. No, I am not now part of iStart. so you have some many you have a knowledge about how that work. So I want to, if I want to join iStart, then what should be the process, or what should be the minimum, what we say minimum requirement to join iStart, or to approve iStart my startup with them? Okay. Uh, as my startup is just a seed, just starting on working on. Currently, I'm working on my minimum viable product. But Mhm. can I join iStart with that, or with my idea? Yeah. Yeah. You can join by, even if you have a rough idea. Also, you can launch yours. You can register over the iStart platform, and you can have a. So I will suggest you, all of you guys who want to register over the iStart, just you go through the iStart website, and if you find any problem in registering, you can directly reach out to me. Saurav, if I'm not wrong, you want to register yourself as a startup, right? There. Yes, sir. Yes. Yeah. So there is a process, but before that you have to make a pitch deck, right? Okay. जो कि एक pitch deck होगा, but pitch deck से भी पहले आपका ये सेशंस में पार्ट लेना जरूरी है, क्योंकि इस सेशंस के थ्रू आपको पता पड़ेगा कि वो pitch deck बनेगी क्या, या Yeah, उस yeah. pitch deck में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे. सो अभी बिल्कुल अपन स्टेज ए की बात कर रहे हैं. जो आज का सेशन हुआ वो सिर्फ स्टेज ए की बात हो रही है, जिसमें आप ये सीख रहे हैं कि स्टार्ट की एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप क्या होता है, Mm-hmm. right? Then in the next session I will be helping you uh, Okay. in deciding your idea, कि आइडिया कैसे होना चाहिए. In Then we will making focus business model. is Okay. making a business model, talking about your presentation, talking about your pitch deck, कि आप pitching कैसे करोगे, या क्या सही है क्या गलत है. So वो next sessions में होएगा. But yeah, of course you can register once you have a total your pitch deck ready with you. तभी आप register करोगे. Okay. I have one more query. Hmm. If as you are saying that team should not be like that कि तू मेरा यार है तो ठीक है अपन दोनों ही मिलके करते हैं. I also prefer this, that the another person from my team should have minimum talent skill set that I have. मिनिमम रिक्वायर्ड, नॉट दैट कि किसी को भी ले लिया जिसके पास कुछ भी नहीं, बस दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से. बट Right. I'm getting problem that how I find these people, tech people, business people. Is there is any community or any place where these type of all guys meet and join these point meetings? How Got it. can I found a founder for me also, as I'm Got it. sorry, not founder, co-founder, as co-founder. Got it. And I'm not in hurry of getting new members. I'm happy with working alone as now. Hmm. Got But it. I want new members. हाँ. So basically process ही होता है. If you are in college, it's very easy, and it should be the case कि आप अपने कॉलेज के ही आसपास ही फाइंड करो. आई मीन कॉलेज में ही फाइंड आउट करो कि किसके साथ अपन कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते, राइट? सबसे पहले तो कॉलेज को ही अप्रोच करना चाहिए. कॉलेज में क्योंकि सबसे फ्रेश टैलेंट होता है और सबसे इजी टू अप्रोच होता है. सो आई विल सजेस्ट यू कि अपने पर्टिकुलर दोस्तों से हटके आसपास देखो अपने कॉलेज में ही. टेल देम योर आइडिया, है ना? ये मत डरो कि आइडिया का क्या होगा, कॉपी होगा, ऐसे नहीं होता. जितने लोगों से आप बात करोगे तब आपको समझ आएगा कि किसको हम को फाउंडर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, राइट? सो इट्स टोटली अबाउट योर डिस्कशन और योर एंगेजमेंट इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम. जितना आप इस इकोसिस्टम में रहोगे उतना आप लोगों से मिलोगे और फाइंड करने में इजीली हेल्प होगा. अदर देन दिस, अगर आपको बाहर ही अप्रोच करना है, सो यू इन दैट केस आल्सो यू कैन अप्रोच डिफरेंट कॉलेजेस. ये एक इनफॉर्मल वे भी है, बट हाँ, एंजल लिस्ट करके भी एक वेबसाइट है जहाँ लोग बेसिकली अपने रिक्वायरमेंट्स डालते हैं कि आई नीड अ को फाउंडर, ये. सो आप वहां पे भी देख सकते हैं. AngelList. Okay. हाँ. हाँ.
Any other questions? Anyone? Saurav, you got the basic idea? Yeah. ठीक है, और किसी का क्वेश्चन जो बाकी है वो भी तो कुछ बोले. Anyone else? Any question? कुछ भी पूछना हो randomly you can ask. Anything about a presentation में कुछ नहीं आया हो समझ, या you want to understand here more about anything. So can you share your story to join iStart or Startup Oasis? Right. ठीक है. So I will keep it very brief about it क्योंकि बहुत सारे factors थे. So as I mentioned in beginning of the session also, मेरा first aim खुद का startup करने का ही था. I started my startup during the 3rd year only. That was ads for you. So जो आपने ऑटोस पे basically ads देखे होंगे, right? या कमर्शियल व्हीकल्स पे भी एड्स देखे होंगे, वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड होते थे. मतलब आज ऑटो पे कुछ ऐड है तो कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा. आई वाज ट्राइंग टू मेक इट एज I was trying to formalize this. I was trying to make it as in a formal structure, right? So basically हम लोगों की टीम थी जो कि कंपनीज को अप्रोच करती थी, एंड वी यूज्ड टू प्रोवाइड देम द ऑटो रिक्शाज, ई रिक्शाज, जहाँ पे वो लोग अपनी एड पोस्ट करवा सके, एंड वी टेक केयर ऑफ देयर टोटल मैनेजमेंट पार्ट कि वो एड वहीं रहेगा. So I did this for around a year, got a good experience about this, earned some money around it, right? But basically I believe in taking calculated risk. I have a nature like that, I have an opinion like that. I usually take a calculated risk. So after that, a company called Startup Oasis Incubation, Jaipur-based incubation center, they asked me to manage the Jhalawad incubation center and Kota startup ecosystem. So yeah, I like the idea to get more knowledge about startup, more knowledge about the startup ecosystem. So I joined there. I worked for 1.5 years, learned many things, got a basic idea कि startup होता क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, क्या benefits हैं. Then I moved to iStart जो कि एक flagship initiative है गवर्नमेंट और राजस्थान का to support the startups, जहाँ हम लोगों ने multiple startups को support करा है, और we have helped some of the startups to raise funds to get a good market as well. Right? So this was all brief about me. Now I am joining with many of the colleges and helping their students to directly launch their startups. And this was one of the session. अभी ये beginning है. On the basis of responses, we will figure out how to take it forward. So that's about me. Anyone else who have any questions? Okay. Anyone else want to ask anything regarding startup, regarding presentation? Your opinion about the presentation? You got the idea? I mean, what entrepreneurship is all about, what startup is all about? Yeah. Yeah, Ishan, you can speak. Yeah, the presentation was nice. Yeah, you got the basic Give us stuff. some idea about startups and entrepreneurship. ठीक है. And other students who have joined, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अंकित, I can see Disha, G-Tech, Ishika. Please guys, please speak up and let me know कि क्या समझ आया आपको, या क्या आप next presentation से क्या expect कर रहे हैं. So accordingly we drive this presentation, the next presentations. So I think presentation should be should have like that somebody is on their starting stage and he is working on just on an idea. Okay, and how they can create a company. I think first firm, then company structure, then approaching what we say investors, and how to approach these government firms also, and how many government firms we have, as iStart is a part of Rajasthan, but I know that there are many another private also. That's Startup Oasis is a private firm that supports startups.
So Right. we should So- get knowledge from these also. Got it. Got it. So it will come on your sessions as well. As I mentioned, Saurav, also that this session was just about the startups, just about the entrepreneurship. कि होता क्या है startup entrepreneurship क्या होती है. In the next sessions, we will be focusing कि आपका business idea कैसे बनेगा, आप startup कैसे करोगे, and then the points which you mentioned कि कहाँ approach करोगे to get the funds, what are the schemes available. So this will be I can say this will be a part of the other workshops and sessions, upcoming workshops, I can say. Anyone else? Any other questions, or we can end it now? Ayush? I think we should end this. Okay, thank you guys for joining. I hope you have got a basic idea of entrepreneurship startups, and let's see in the next session how we will be covering. We will be discussing about how to develop your business idea in the next session. So let's catch up you guys in the next session. Thank you, Ayush, for coordinating, and thank you all the other guys for joining the session. Thanks a lot. Thank you, everyone.